Okay, beta. Uh, so there are two types of morphemes: free morpheme and bound morpheme. What are those free morphemes, beta? Free morpheme for a morpheme which can stand on its own, which can stand alone, and bound morpheme can, it is also a meaningful unit, but it cannot stand alone on its own. Okay, ji, there are two types of morphemes: bound free morpheme and bound morpheme. Each morpheme type is further divided into two more five types. One is lexical morpheme. Okay, free morpheme are divided into two more types: lexical free morpheme and functional free morpheme. और जो bound morpheme है, there are also of two types: derivational bound morphemes and inflectional bound morphemes. Okay, can you read? Can you see the slides? The difference between free morpheme and bound morpheme. The type of morpheme that can stand alone as a word by themselves, like for example, boy. Boy. How many morphemes? Boy. How many morphemes? One. So One. one. One morpheme. Boy can be used anywhere. If we need a masculine gender to pronounce masculine gender, to introduce masculine gender, so that we can use the word boy. So this boy is a meaningful unit and it is free morpheme. It can be used anywhere. Okay. Bound morpheme क्या होता है? The type of morpheme that cannot stand alone as a word by themselves. S, अब ये S क्या है? ये एक S पूरा morpheme है, morphemic unit है, meaningful unit है, लेकिन S itself does not have meaning. S की मीनिंग मॉर्फोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में, मतलब हम फिजिकल मैनिफेस्टेशन में जब यूज होगी तो हमें पता चलेगा बॉय की दो मॉर्फीम्स हैं और बॉय मींस वन बॉय एंड बॉयज मींस टू बॉयज. तो यहाँ पर बॉय इज फ्री मॉर्फीम and that S is bound morpheme. Drive is free morpheme. It is verb and can be used anywhere. While ER, although it is a morpheme, but it is bound morpheme, it cannot be used alone on its own. Okay, so that is what we call bound morpheme. जैसे for example, boy is one morpheme. And what morpheme is it? Boy, बेटा boy कौन सा morpheme है? Free morpheme है या bound morpheme है? So free. Free. अगर मैं कहूँ इश, अभी इश को मैं कहीं यूज कर सकता हूँ अलग से? No, sir. नो. लेकिन इश को मुझे It यूज cannot करने be के लिए, alone. जी, Because it can't be alone. एग्जैक्टली. तो ऐसे मॉर्फीम को हम क्या कहते हैं? बाउंड मॉर्फीम. Bound morpheme. बाउंड मॉर्फीम. सो ओके जी, बाउंड मॉर्फीम. सो फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम, हम उसकी फर्दर कैटेगरीज में बाद में जाएंगे. पहले क्लियर होना चाहिए फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम. ओके, अब ये फ्री मॉर्फीम को अब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. फ्री मॉर्फीम, बॉय, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, फ्री मॉर्फीम्स हैं. फ्री मॉर्फीम ये दो तरह की होती हैं. और फ्री मॉर्फीम हमारे पास कौन से होते हैं? आपने वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं ना? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8, sir. 8 parts of speech. Nouns, Pronouns. नहीं बेटा, प्रोनाउंस Adjective. नहीं बेटा, Verb. नाउन्स के साथ प्रोनाउंस को यूज नहीं करेंगे. हमारे पास जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनमें से 4 जो हैं वो नाउन, वर्ब, नहीं एडजेक्टिव. बेटा, वर्ब भी नहीं करेंगे हम. थोड़ा सा हम एक और नई इसकी सर ऑक्सिलरी. नहीं बेटा, आते हैं. ओके जी, वी हैव नाउन्स एंड देन वी हैव एडजेक्टिव्स. नाउन्स क्या होता है? यस सर. एनी नेम सर. मीनिंगफुल वर्ड्स. Place of thing. जी, noun is a name. Noun is the name. कुछ भी नहीं Noun है. is the name of. Noun is not anything, nothing. Noun is nothing. Noun is but name. Noun is nothing Name, but yes, sir. name. और name क्या होता है? Name. Name is identification from God to the creator, from God creator to the creation, from God to the unicellular organisms, from God to the idea like love, dare, adventure. So from God to unicellular organisms, or from God to the idea, anything or everything that exists in this universe has its identification. उसकी एक शनाख्त है. खुदा की शनाख्त है, अल्लाह उसकी शनाख्त है, भगवान उसकी शनाख्त है.
ठीक है ना। इसी तरीके से जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये यूनिसेल्युलर जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनकी भी एक आइडेंटिफिकेशन है, उनका भी एक नाम है। सो हर चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका एक नाम है। और व्हाट इज दैट? from growth to unicellular or its creatures is called now. जी बेटा, जी बेटा। No, sir. I was telling someone. Sorry, sir. Okay, you are telling That somebody it is, and your mic was sir, on. Okay. it is very complex definition of noun. Okay, nouns From are God to names. the- Names are identifications. Name identifications होते हैं। हर चीज की एक आइडेंटिफिकेशन होती है। अच्छा जी, नाउन जब आपके यूज होता है ना, तो नाउन के साथ जो लिंक्ड वर्ड होता है ना नाउन्स का, वो एडजेक्टिव होता है। नाउन्स के साथ हमेशा एडजेक्टिव यूज होता है। क्यों? क्योंकि नाउन्स एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स। सो नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। क्योंकि अ बॉय, मुझे रनर चाहिए, ही इज द रनर। अच्छा जी, रनर की मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहूंगा कि कैसा है ये रनर, हाउ इज द बॉय, हाउ इज द रनर। तो यू विल एलेबोरेट, यू विल मॉडिफाई, यू विल टेल मी, फर्दर एलेबोरेट करोगे नाउन को। इज अ गुड बॉय, इज अ फास्ट रनर। तो गुड एंड फास्ट गो विथ नाउन्स। तो जो वर्ड्स, द वर्ड्स व्हिच गो विद द नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। सो नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। देन वी हैव वर्ब्स, देन वी हैव वर्ब्स। और वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स में भी दो कैटेगरीज हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स। हम वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ब्स, ठीक है ना, एक्शन वर्ब्स। एंड देन वी हैव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स गो विद द वर्ब्स, एडवर्ब्स। अच्छा, वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं, एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन नाउन्स के साथ जो वर्ड होगा यूज, द वर्ड दैट विल गो विद द नाउन्स इज ओनली एडजेक्टिव। एडवर्ब गो विद द वर्ब्स, एडवर्ब आल्सो गो विद द एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स कैन आल्सो गो विद द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का नाउन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, ये जो चार वर्ड्स है ना, और बाकी जितने भी वर्ड्स है ना, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, conjunctions, interjections, interjections, all these words are called empty words. जो ऊपर जो words है ना बेटा, verbs के साथ including those excluding non-action verbs are called empty words. Okay, जो ऊपर के जो चार वर्ड्स हैं, दे आर मीनिंगफुल वर्ड्स। आपकी जो वोकेबलरी है, जो आपका लेक्सिकल यूनिट है, वो यही है। बाकी जो चार वर्ड्स हैं ना, वो एम्प्टी होते हैं, पता है आपको, दे आर एम्प्टी वर्ड्स। उनका कोई फंक्शन नहीं होता, जस्ट ग्रामेटिकल फंक्शन होता है उनका। क्या फंक्शन होता है? ग्रामेटिकल फंक्शन। एम्प्टी वर्ड्स की कोई मतलब मीनिंगफुल यूनिट नहीं होते। मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, मीनिंगफुल पार्ट्स होते हैं, वो चार होते हैं। नाउन होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं बुक, बुक, टेबल, खाली बुक और टेबल का मैं जब नाम लूंगा तो मीनिंग आपको पहुंच जाएगी कि बुक और टेबल। मैं इन, ऑन, एट नहीं लगाता, ठीक है ना। इन, ऑन, एट सिर्फ तब लगाऊंगा जब मुझे ग्रामर करेक्ट करनी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बुक टेबल, तो आप समझ जाएंगे कि बुक टेबल पर पड़ी है या टेबल के नीचे पड़ी है, कहीं ना कहीं टेबल ही के पास पड़ी हुई है, बुक और टेबल। तो मीनिंगफुल यूनिट क्या है? नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं। अच्छा जी, इन, ऑन, एट ये ग्रामर के लिए यूज होते हैं और कोई फंक्शन नहीं होता, पता है आपको। प्रीपोजिशंस, अलाज, हुर्रा, याहू, सिर्फ उसका एक्सप्रेशंस का फंक्शन है और मीनिंगफुल यूनिट नहीं होते। प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन होते हैं। इट देमसेल्फ, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उनकी कोई मीनिंग नहीं होती। इसी वजह से जो चार वर्ड्स हैं हम उनको मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं और बाकी जो चार वर्ड्स हैं हम उनको एम्प्टी वर्ड्स कहते हैं। ये हम क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। आ जाइएगा, जब हम बात करते हैं ना लेक्सिक मॉर्फीम्स की, तो मैंने आपसे कहा कि देयर आर फ्री मॉर्फीम्स। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, बेसिकली ये फ्री मॉर्फीम्स हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीच फ्री मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स सर। अच्छा, ये भी यहाँ पर देखिएगा ना, दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। ये वही दो कैटेगरी जो मैं अभी आपको पहले बता चुका।
लेक्सिकल मॉर्फीम्स एंड फंक्शनल मॉर्फीम्स। आ जाते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स क्या होते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम ओपन क्लास मॉर्फीम्स को कहते हैं। ओपन क्लास का मतलब क्या होता है, वो वर्ड्स जो डिक्शनरी में ऐड हो रहे होते हैं और खत्म हो जाते हैं, हो रहे होते हैं, कभी कभी खत्म भी हो जाते हैं, जैसे आउटडेटेड वर्ड होते हैं। जैसे आपने शेक्सपियर में पढ़ा होगा, दाओ आर्ट एंड दाइन इज इट। ओके, दाओ दाइन अब यूज नहीं होते, कभी यूज होते थे। तो Yes, sir. Yes, sir. ओपन क्लास वर्ड्स बेसिकली मतलब जो है ना, ऐसे वर्ड्स वोकेबलरी के अंदर आपके ऐड हो रहे होते हैं और वोकेबलरी से निकल भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास डिक्शनरी में अब नहीं होते यूज, जो पहले यूज हुआ करते थे। लेक्सिकल Sir, मॉर्फीम, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हो हाँ जाते जी, हैं ना। ओल्ड बन जाते हैं तो वो डिस्कार्ड भी हो जाते हैं, कुछ कुछ चलते हैं, कुछ डिस्कार्ड हो जाते हैं। डिक्शनरी में वर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं, वर्ड्स निकल भी जाते हैं। ओके, सो लेक्सिकल मॉर्फीम्स उन 4 वर्ड्स को कहते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है ना। और वो चारों वर्ड्स कौन से होते हैं, नाउन्स होते हैं। सोनामी, अब ये सोनामी क्या था, सोनामी सुना है कभी आप किसी ने, एनीवन हर्ड दिस वर्ड सोनामी? हाँ जी, Yes, sir. क्या होता है सोनामी? समंदरी सैलाब। समंदरी सैलाब। समंदरी ये वर्ड पहले कभी सुना था, मतलब ये जापान के सैलाब से पहले नो सर। नहीं सुना था No, ना। sir. तो ये एक नया वर्ड ऐड हुआ और वर्ब के तौर पर भी यूज ऐड, पहले तो नाउन के तौर पर ऐड हुआ, उसके बाद वर्ब के तौर पर। जैसे कारपेट है, कारपेट नाउन है या वर्ब है? Noun, sir. बोथ नाउन है। सर। अच्छा, Noun इट है। वाज कारपेटेड, द रूम वाज कारपेटेड। अब यहाँ पर सर वर्ब है, बोथ नाउन है? नाउन एंड वर्ब। नाउन एंड वर्ब है। Noun फास्ट वर्ब है जो वर्ड है, फास्ट, फास्ट नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अब ये पता है क्या, अकॉर्डिंग टू यूजेज हमें पता चल जाए, सिंटैक्स के अंदर पता चलता है। लेकिन जो मीनिंगफुल वर्ड्स है ना, वो 4 ही हैं। उन चारों वर्ड्स को हम कहते हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स। लेक्सिकल मॉर्फीम्स जब कोई नई इजाद होती है तो एक नया नाम आता है। जैसे आपने वर्ड सुना था कभी सेल्फी कैमरे से पहले, मोबाइल कैमरे से पहले सेल्फी कभी सुना था? No, sir. सेल्फी sir. का No, sir. सेल्फी एक नया वर्ड ऐड हुआ, ठीक है ना। पहले नाउन के तौर पर ऐड हुआ, उसके बाद वर्ब बना लिया गया, उसके बाद कुछ भी मतलब, लेकिन ये वर्ड ऐड हो रहे होते हैं हमारी डिक्शनरी में। नाउन ऐड हो रहे होते हैं, एडजेक्टिव्स ऐड हो रहे होते हैं, वर्ब्स ऐड हो रहे होते हैं, एडवर्ब्स ऐड हो रहे होते हैं। पता है आपको? इनको हम ओपन क्लास मॉर्फीम कहते हैं, इनको हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स कहते हैं। सो वर्ड्स कैन ऐड मॉर्फीम टू दीज वर्ड्स। ओके, वी कैन ऐड मॉर्फीम्स टू दीज वर्ड्स, और इनके साथ वो बाउंड मॉर्फीम लगती हैं, इन चारों के साथ बाउंड मॉर्फीम लगती हैं। तो उनको हम कहते हैं नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। बेटा याद रखिएगा ये चारों वर्ड्स, दे आर मीनिंगफुल वर्ड्स, they are lexical morpheme, they are free morpheme, they are open class morphemes. Examples are there, man, verb है, noun है, adjective है, adverb है? Man, No. Sir, noun है। man is a noun. Noun. Girl, noun. Home, table, glass, Noun. drink, sleep, loyal, fast, Verb। bathe, work, break, Loyal, etc. adjective. जी, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये लेक्सिकल मॉर्फीम है। ये क्या है, लेक्सिकल मॉर्फीम, या फिर इनको क्या कहेंगे, ओपन क्लास मॉर्फीम। क्लियर? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एक्सीलेंट बेटा। सिंपल सा फार्मूला है बेटा। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनमें 4 मीनिंगफुल होते हैं, ओके, और बाकी जो 4 है ना वो एम्प्टी होते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता, ग्रामर का स्ट्रक्चर बनाना होता है सेंटेंस का। इसी वजह से हम उनको फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं। Yes, sir. याद आया कुछ? Okay, Yes, sir. words that have grammatical functions। बस कंजंक्शन किस लिए यूज होता है भाई? सेंटेंसेस को, नाउन्स को आपस में मिलाने के लिए, फ्रेजेस को आपस में मिलाने के लिए, क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए, सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए, और तो कोई फंक्शन नहीं होता ना, ये तो बस ज्वाइन करते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं। प्रीपोजिशंस, हाँ जी, रिलेशनशिप वर्ड्स होते हैं, चीजों का आपस में रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ओके, कैन यू सी दिस? ये ग्लास है, ठीक है ना, और ये पेन है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जी ये पेन का और ग्लास में, ग्लास का और पेन का आपस में क्या रिलेशनशिप है? जी मैं पेन के लिए आपसे पूछूंगा, पेन मेरा कहाँ पर है बताओ? मेरे पेन का रिलेशनशिप इस ग्लास से क्या बना? द पेन इज, पेन कहाँ पर है बेटा? In the glass. पेन इज इन द ग्लास, पेन इज इन द ग्लास। अच्छा जी, ग्लास को मैं अपने पाम पे रखता हूँ। वेयर इज द ग्लास? On on the On the ग्लास इज glass. ऑन माय पाम। अगर ग्लास को मैं यूं पकड़ लेता हूँ तो फिर क्या हो गया?
In the Glass In the is in my hand and where am I am in my room. तो बेटा ये क्या कहलाते हैं? preposition सिर्फ function perform करते हैं relationship का, empty words होते हैं, ठीक है ना? उस वजह से हम उनको functional morpheme कहते हैं. articles क्या होते हैं? nouns के साथ उसकी identify करने के लिए proper है या general है, definite है या indefinite है ना? nouns को. Yes, sir. Yes, I'm sir. going to a doctor and I'm going to the doctor. सिर्फ उसके क्लैरिटी के लिए पर्टिकुलर है या जनरल है. ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, मैंने कहा था ना ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो दो टाइप्स हैं उसमें एक तो फंक्शनल है, जो एक्शन वर्ब्स हैं, और दूसरे ऑक्सिलरी. जितने भी ऑक्सिलरीज है ना वो भी मीनिंगफुल हैं और मीनिंगलेस हैं, यानी एम्प्टी हैं, जो कि ग्रामर का फंक्शन करते हैं और कुछ नहीं. प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन के सब्स्टिट्यूट्स हैं. तो ये सारे क्या होंगे? फंक्शनल वर्ड्स हैं, इनका और कोई काम नहीं है ग्रामर का. सेंटेंस में ग्रामर का फंक्शन. वोकैबुलरी कितने पार्ट्स हैं? 4 हैं. फंक्शनल वर्ड्स कितने हैं? सॉरी, अपना लेक्सिकल वर्ड्स कितने हैं बेटा? लेक्सिकल 4. वर्ड्स 4. नाउन्स 4. Verbs, verbs, adjectives, adjectives, adverbs. और फंक्शनल वर्ड्स कितने हैं? Adverbs. prepositions, articles, pronouns, conjunctions, determiners, auxiliaries, ये तमाम वर्ड्स फंक्शनल मॉर्फीम कहलाते हैं और ये क्लोज क्लास कहलाते हैं. क्लोज इसलिए कि भाई ये फिक्स्ड होते हैं, उसके बढ़ नहीं सकते. जैसे I फर्स्ट पर्सन we, सेकंड पर्सन you, सेकंड पर्सन प्लूरल you, थर्ड पर्सन सिंगुलर he, she, it, और थर्ड पर्सन प्लूरल they. ये जो 10 वर्ड्स है ना, उस जब से ग्रामर है तब से ये 10 ही है, उसके अलावा ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्लोज क्लास होते हैं, फंक्शनल होते हैं. ग्रामर के फंक्शन के लिए ये ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना? दैट इज व्हाई हम इनको क्या कहेंगे? एम्प्टी वर्ड्स, फंक्शनल वर्ड्स और क्लोज क्लास. क्लोज क्लास का मतलब है कि ये ऐड नहीं होते, ठीक है ना? ये ऐड नहीं होते. आर्टिकल 3 है ना, जब से हैं 3 ही है, 3 से ज्यादा बढ़े ही नहीं है. कभी बढ़े? कभी? या आपने अली शेर ने कोई नया आर्टिकल इजाद किया हो? No, sir, अभी तक नहीं. अभी तक नहीं किया. क्यों? क्या? बिकॉज दे आर फंक्शनल वर्ड्स. तो वो चारों वर्ड्स को अब थोड़ा सा क्लियर हुआ. ये चारों फ्री मॉर्फीम्स हैं, ठीक है ना? उनमें से 4 जो हैं वो लेक्सिकल हैं और 4 बाकी जितने भी हैं, जो भी 4 तो नहीं है, मतलब जो भी है उसके अंदर डिटरमाइनर भी आ गए, उनके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आ गए. वो जितने भी पार्ट हैं वो फंक्शनल मॉर्फीम है. फंक्शनल से मुराद ग्रामेटिकल फंक्शनल. और क्लोज क्लास इसलिए है क्योंकि ये बस फिक्स्ड होते हैं, ये ऐड नहीं होते ग्रामर में, लैंग्वेज में. क्लियर बेटा? क्लियर? Yes, sir. ओके, माशाल्लाह, माय स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, है ना? अच्छा जी, फ्री मॉर्फीम क्लियर हुआ कि जी फ्री मॉर्फीम वही होते हैं. अब हम आते हैं बाउंड मॉर्फीम की तरफ. ये बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं भाई? बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं? फ्री मॉर्फीम तो आसान है, बाउंड मॉर्फीम क्या होते हैं? बाउंड मॉर्फीम्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. एक होते हैं डेरिवेशनल और दूसरे होते हैं इन्फ्लेक्शनल. कौन कौन से? डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल. इन्फ्लेक्शन. अच्छा, ये क्या होते हैं? किसी को पता है डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल? बाउंड मॉर्फीम्स आर meaningful units of words, but they cannot stand on their own, but they cannot be used individually, separately. They must be used or they must be attached with the free morphemes, ठीक है ना? तो there are 2 types of bound morpheme, derivational and inflectional. ये inflectional bound morphemes कौन से होते हैं? और ये bound morpheme होते क्या हैं बेसिकली? बाउंड मॉर्फीम ये जो जितने भी प्रीफिक्सेस होते हैं, जितने भी इनफिक्सेस होते हैं, जितने भी सफिक्सेस होते हैं. अच्छा, प्रीफिक्स और सफिक्स तो सबने सुना है, सुना है? Yes, sir. जी सर. ये इनफिक्स क्या होता है? मैंने इन्फिनिक्स तो सुना है, इन्फिनिक्स मोबाइल. ये इनफिक्स क्या है? इनफिक्स इंग्लिश में होता ही नहीं है बेटा, सीधी सी बात है. इंग्लिश में होता ही नहीं है, बाकी उर्दू के अंदर होता है कहीं ना कहीं, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर होता है. प्रीफिक्स तो मुझे पता है. प्रीफिक्स को कभी भी हम इंडिविजुअली सेपरेटली यूज नहीं कर सकते. अन कभी भी अलग से नहीं आता. अन 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 कहीं यूज कर सकते हो? No, sir. Without word नहीं कर सकते. अच्छा जी, इश, नेस, नेस कभी यूज कर सकते हो? No, sir. Less, less. लेस यूज कर सकते नहीं ना? तो क्या मतलब होता है? No. ये सफिक्सेस वो होते हैं जो आखिर में ऐड होते हैं, लेकिन उनकी
इंडिविजुअली हम इनको यूज नहीं कर सकते। इनफिक्सेस क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या होता है, इनफिक्स यानी वर्ड के बीच में भी यूज हो रहे होते हैं, जो कि उर्दू में होता है, हमारे इंग्लिश में नहीं होता। ठीक है ना? जैसे अमीर है और बहर है, अमीर और बहर, सुना है कभी? अमीर, उसके बीच में इन वर्ड्स को दो फोनीम्स को, उर्दू के फोनीम्स को बीच में जब जोड़ने हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं पता है आपको? अल लगा देते हैं, अमीरुल बहर, सुना है कभी? अमीरुल मोमिनीन। Yes, sir. अब ये अल बेसिकली इनफिक्स है उर्दू का, तो हमें इनफिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हम उर्दू नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपको पता हो कि इनफिक्स क्या होता है, जब मॉर्फीम के यूनिट को दो को बीच में जो कनेक्ट करता है, एक ऐसा यूनिट जो दो को बीच में कनेक्ट करता है और एक नया वर्ड बनाता है। जैसे प्रीफिक्स शुरू में लगता है, सफिक्स एंड में लगता है। उर्दू में हमारे पास इनफिक्स भी होता है, इन माने बीच में माने में, और फिक्स माने इन माने अंदर, और फिक्स माने बीच, फिक्स करना, गाड़ना। सो किसी को बीच में गाड़ना इनफिक्स कहलाता है। प्री फिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस पता है आपको? प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस की एक और स्लाइड आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना? आते हैं जी डेरिवेशनल मॉर्फीम की दो जो टाइप्स हैं वो हैं क्या? पहले तो डेरिवेशनल मॉर्फीम कहते किसको हैं जी? Derivational morpheme, it changes the category of words when it is added to the free morpheme, but there are some exceptions जी। डेरिवेशनल मॉर्फीम जो उसकी फर्स्ट टाइप है फ्री बाउंड मॉर्फीम की, डेरिवेशनल टाइप मॉर्फीम कहलाती है। डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या होती है? डेरिवेशनल मॉर्फीम वर्ड की क्लास को ही चेंज कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्ले, और प्ले के साथ ईडी लगा दिया तो अब उसने सॉरी क्या किया, वर्ड की क्लास को चेंज कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेट, द वर्ड क्या है? एजुकेट। वर्ड एजुकेट का मतलब क्या है? give education. टू गिव एजुकेशन, वर्ब है, इट्स अ वर्ब। तालीम देना, टू ब्रिंग अप, ठीक है ना? तालीम देना, तरबियत करना, इट्स एजुकेट। अगर हम उसके साथ TION लगा दें, वर्ब के साथ TION, तो फिर क्या बन जाता है? एजुकेशन। एजुकेशन। अब ये पहले वर्ब था, अब क्या बन गया? नाउन। अब नाउन बन गया। तो ये जो शन हमने लगाया ना, इसको हम डेरिवेशनल मॉर्फीम कहते हैं। डेरिवेशनल मॉर्फीम किसी भी वर्ड के साथ जब ऐड होता है, उसकी वर्ड की फॉर्म को चेंज कर दे, तो वो डेरिवेशनल यानी जिससे हम ड्राइव करते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम। इट चेंजेस द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स व्हेन इट इज एडेड टू द फ्री मॉर्फीम, एंड बट देयर आर सम एक्सेप्शन। इट मींस देयर आर टू डेरिवेशनल मॉर्फीम, क्लास चेंजिंग मॉर्फीम और क्लास मेंटेनिंग मॉर्फीम। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्लास मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आते हैं, अब ये देखिएगा कैसे हैं वो वर्ड्स जो क्लास चेंज कर रहे हैं। ड्राइव, इसके साथ ER लगा देते हैं। ड्राइव क्या है? वर्ब है, नाउन है? वर्ब है सर। ड्राइव वर्ब है। अच्छा, ER लगा दिया तो क्या बन गया? नाउन। नाउन बन गया। नाउन बन गया। Noun. ये कौन सा मॉर्फीम है? Derivation. डेरिवेशनल मॉर्फीम है जो कि क्लास चेंज कर रहा है। ब्यूटी क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? Noun. नाउन है। और ब्यूटी के साथ अगर हम फुल लगा देते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फीम है फुल। सफिक्स है, लेकिन सफिक्स कौन सा मॉर्फीम बना रहा है? डेरिवेशनल मॉर्फीम, जो कि नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर रहा है। वैलिड नाउन है, क्या है? नाउन। नाउन है। अगर इन लगा दें तो क्या बन जाता है? Again now. इनवैलिड। ओके, यहाँ पर अब ये नाउन ही रहा है। क्लास, अच्छा इधर आ जाते हैं। क्लास मेंटेनिंग, ये जो था बेसिकली वो यही था जो उधर लिखना था। ओके, सॉरी, उसमें क्लास चेंज हो रही थी ना, नाउन वर्ब में चेंज हो रहा था, वर्ब नाउन में चेंज हो रहा था, एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज हो रहा था। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो नाउन को वर्ब में, वर्ब को नाउन में, एडजेक्टिव को एडवर्ब में कन्वर्ट चेंज करते हैं, उसको हम डेरिवेशनल मॉर्फीम कहते हैं। और डेरिवेशनल मॉर्फीम में भी कौन सा मॉर्फीम डेरिवेशनल? क्लास चेंजिंग। वर्ड की क्लास को ही चेंज कर लिया ना बेटा उसने जी। यस सर। वर्ड की क्लास। डेरिवेशनल मॉर्फीम कौन सा डेरिवेशनल? डेरिवेशनल क्लास चेंजिंग मॉर्फीम, या फिर क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा, आपको ऐड कर करके, ओके सॉरी, क्लास चेंजिंग कैसे होते हैं? सॉरी, क्लास मेंटेनिंग वर्ब, क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल कौन से होते हैं?
वैल्यूएबल के साथ इन लगा दिया, वो नेगेटिव उसका अपोजिट तो बन गया, लेकिन एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहा। वैल्यूएबल क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है? Adjective. एडजेक्टिव है। और इनवैल्यूएबल अपोजिट है, एंटोनिम है ना, लेकिन वर्ड कौन सा है? इनवैल्यूएबल नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है? Adjective. एडजेक्टिव है। तो जब कोई डेरिवेशनल मॉर्फीम उस वर्ड की क्लास यानी नाउन को नाउन ही रहे, प्रोनाउन को एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही रखे, और लेकिन भले सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, उससे सरोकार नहीं है। हम ग्रामर की क्लास की बात कर रहे हैं। उधर वो उसकी क्लास को चेंज कर रहा था, वर्ब को नाउन कर रहा था, नाउन को एडजेक्टिव कर रहा था। इधर एडजेक्टिव अपोजिट तो है, लेकिन एडजेक्टिव एडजेक्टिव ही रहा, तो उसको हम क्लास मेंटेन कर रहा है, उसकी क्लास को मेंटेन कर रहा है। मीनिंग तो चेंज कर रहा है, लेकिन उसकी क्लास को मेंटेन कर रहा है, तो जो क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम कहलाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर? यस सर। Yes, sir. पक्का? ओके, वैलिड है। वो जो वहां से थोड़ी सी टाइपो एरर है बेटा, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वैलिड है नाउन, नाउन क्या है, वैलिड क्या है, नाउन है। इन लगा दें तो नेगेटिव तो बन रहा है, लेकिन कौन सा नेगेटिव बन रहा है? नाउन ही बन रहा है। ओ सॉरी, अपना एंटोनिम तो बन रहा है, लेकिन कौन सा एंटोनिम है? नाउन ही है। तो जब डेरिवेशनल मॉर्फीम वर्ड की क्लास को चेंज करता है, तो वो क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल कहलाता है। जब डेरिवेशनल मॉर्फीम क्लास चेंज नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है? क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशनल कहलाता है। क्लियर? Yes, sir. अभी समझ यस गया। सर। ओके, माशाल्लाह, Yes, sir. गुड 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 गुड। जश। अच्छा जी, क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम की थोड़ी एक और स्लाइड दोबारा ऐड हो गई है, खैर देख लीजिएगा। अगेन क्लास चेंजिंग हेल्प था, वर्ब है। हेल्प का मतलब क्या है? वर्ब। हेल्प क्या है बेटा? Verb है sir. वर्ब है। और हेल्पर क्या है? ER लगा दो तो क्या बन जाता है? नाउन। नाउन बन गया। ये Noun, sir. Noun. ओके, ये कौन सा मॉर्फीम है? डेरिवेशनल। ER कौन सा मॉर्फीम है यहाँ पर? So ये derivation डेरिवेशनल है। और कौन? ओके, डेरिवेशनल क्या? क्लास चेंजिंग डेरिवेशन। क्लास चेंजिंग डेरिवेशनल। हेल्प वर्ब है, ER लगा दे, नाउन बन गया। एडजस्ट वर्ब था, MENT लगा दिया तो वो नाउन बन गया। क्लास Noun बन गया। चेंजिंग डेरिवेशनल मॉर्फीम। उसके बाद आते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम। ये तो थोड़े से 8 हैं टोटल। कितने हैं? 8 हैं, याद रखना आसान रहेगा। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, मॉर्फीम्स दैट अब एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इनफ तो नहीं हो गया आज? नहीं बेटा, आज की ये 2 स्लाइड्स हैं और इसको कंप्लीट कर, क्योंकि अब हमारी काइंड्स टाइप्स ऑफ मॉर्फीम, क्योंकि अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको हम ओवर कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा ख्याल में हो सकता है कि कल की क्लास से पहले मैं थोड़ा इसको पूरा रिकैप कर लेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में आ जाइए। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कौन से हैं बेटा? Inflectional morphemes, inflectional morphemes that are used to indicate the aspect of the grammatical function of a word. ग्रामेटिकल एस्पेक्ट दिखाते हैं। अब वो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट कौन से होते हैं? जैसे हम नाउन होता है हमारे पास टेबल। अब टेबल के साथ अगर हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर से क्या बन जाता है? Plural. प्लूरल बन जाता है। तो ऐसे Plural में। जी बेटा, ऐसे मॉर्फीम्स को हम कहते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, जो कि हमारा ग्रामर का फंक्शन से सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। Morphemes that are used to indicate the aspects of grammatical function of a word. English has only how many morphemes? Inflectional morphemes बेटा? 8 morphemes है inflectional. एक inflectional यानी S, ES, IES जो होते हैं हमारे singular plural बना रहे होते हैं, ऐसे morphemes को हम कहते हैं inflectional morpheme, जो कि plural बनाते हैं। Inflectional morphemes कौन से होते हैं? PLU for inflectional making plurals. Boy, boys, sky, SKY, skies, ओके, डंकी, डंकीज, ये प्लूरल बनाने के मॉर्फीम होते हैं। अच्छा जी, एक होते हैं पजेसिव बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। ये एपोस्ट्रोफी और एस ये बेसिकली मॉर्फीम है, पता है आपको? अली, अली पेंसिल, अलीज पेंसिल। तो अली के साथ जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये पूरा मीनिंगफुल यूनिट है बेटा, ये पूरा मीनिंगफुल यूनिट है जो कि पजेसिव प्रोनाउन बनाता है, मॉर्फीम है। Yes sir. Somebody is talking. Okay, possessive, POSS, याद रखिएगा, POSS, possessive inflectional, plural inflectional, possessive inflectional। अच्छा, adjectives की कैटेगरीज होती हैं, good, better, best। अब ये
गुड के साथ बेटर, बेस्ट। अच्छा चलें जी, गुड और बेटर को भी हटा देते हैं। हम आते हैं क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अब ER और EST क्या है? ये भी मॉर्फीम्स हैं। और ये कौन से मॉर्फीम है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं, जो क्या बनाते हैं? ग्रामर का कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? कंपैरेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। डिग्री कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव, तो हमारे पास कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री भी बनती है, तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव EST लग जाता है। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। क्लेवरेस्ट। जी, क्लेवर क्या था? स्टेम है, फ्री मॉर्फीम है, ठीक है ना। ER लगा दिया, कौन सा? ER इन्फ्लेक्शनल कहलाता है और कंपैरेटिव बन गया। और EST लगा दिया तो क्या बन गया? सुपरलेटिव। ER और EST इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। और उसके बाद फिर कौन से आते हैं जी? प्रेजेंट वर्ब्स बनाते हैं, जैसे आई प्ले एंड अली। जी बेटा, प्लेज। अली प्लेज। अब ये एस क्यों लगा दिया? प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट तो है बेटा। 8 मिनट है और 8 मिनट में हमने इसको कंप्लीट करना है। 1 मिनट में आपको एक और स्लाइड शेयर करता हूं आपके साथ। इसको क्लियर कैसे करेंगे भाई? क्लियर कर देंगे, क्लियर कर दिया। इसको कैसे क्लियर करेंगे? चले, टेबल, TABLE, इसकी प्लूरल कैसे बनाते हैं? टेबल्स, टेबल्स, CHAIR। इसकी प्लूरल कैसे बनाते हैं? अच्छा जी। Chairs. अब रूल क्या है? रूल क्या है कि नाउन के साथ, when nouns with S, singular nouns, okay, nouns, singular nouns plus S क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन्स। ऐसा ही है ना? सिंगुलर नाउन के साथ अगर हम S लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब में फार्मूला डिफरेंट है। वर्ब जो होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ओके जी, प्लूरल वर्ब होता है। वर्ब के साथ अगर हम S लगा देते हैं, S लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है पता है आपको? सिंगुलर वर्ब बन जाता है। वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। क्लियर? तो वो ये जो वर्ब है बेसिकली, अब यहां पर हमारे जो वर्ब है वो क्या बना रहा है? प्रेजेंट वर्ब बनाता रहे। वॉक के साथ S लगा दें तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। यानी हमारा वर्ब था, मॉर्फीम था, फ्री मॉर्फीम था वॉक, और उसके साथ S लगा दिया, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम लगा दिया, तो वो क्या बन गया? वो क्या बन गया बेटा? सिंगुलर वर्ब बन गया, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब। अच्छा, उसकी पास्ट कैसे बनती है? ED लगा देते हैं तो वो पास्ट बन जाती है। तो ये जो ED जो है वो पास्ट वर्ब बनाते हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होते हैं। ओके, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल कैसे बन जाते हैं? EN लगा देते हैं, जैसे ड्राइव, ड्रिवन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बन जाते हैं? जो हम कंटिन्यूअस फॉर्म जिसको कहते हैं ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो ये क्या है जी बेटा? टोटल कितने पार्ट्स ऑफ इन्फ्लेक्शनल है? यहाँ पर क्लियर नहीं होगा, अगली स्लाइड में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आ जाइए। नाउन के दो इन्फ्लेक्शनल होते हैं। एक इन्फ्लेक्शनल प्लूरल बना देते हैं, जैसे मग के साथ S लगा दिया, स्पा के साथ S लगा दिया, बसेस के साथ ES लगा दिया, प्लूरल इन्फ्लेक्शंस। और नाउन के साथ अगर हम अपॉस्ट्रोफी S लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पोजीशन बन जाता है। तो नाउन की पोजीशन में हमारे पास नाउन के दो इन्फ्लेक्शनल है, एक प्लूरल इन्फ्लेक्शनल और एक पॉसेसिव इन्फ्लेक्शनल। वर्ब में हमारे पास कितने इन्फ्लेक्शनल्स हैं? 3 हैं। कौन कौन से? एक हमारा क्या बनाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाता है, जैसे रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट्स, वॉच, वॉचेस, फॉर्म, फॉर्म्स, प्रूव, प्रूव्स। और उसके बाद दूसरा वर्ब क्या है जी बेटा? चौथा क्या? 4 है ना। दूसरा क्या बनाता है? पास्ट टेंस बनाता है। इंक्वायर, इंक्वायर्ड, एनालाइज, एनालाइज्ड, कुक, कुक्ड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, मार्क, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे ING लगा देते हैं, ईट, ईटिंग, बीइंग, बीइंग, स्क्रीम, स्क्रीमिंग। और पास्ट पार्टिसिपल जो हमारे पास प्रूफ, प्रूवन, टेकन, इरेगुलर, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, और हैंग, हंग, हंग, वेट, वेटेड, वेटेड। तो ये हमारे पास वर्ब्स के कितने पार्ट इन्फ्लेक्शनल है? 4 इन्फ्लेक्शनल वर्ब्स के हैं,
दो इन्फ्लेक्शनल नाउन के हैं और ए दो इन्फ्लेक्शनल किसके हैं, एडजेक्टिव के, क्योंकि जो पॉजिटिव डिग्री है वो तो फ्री मॉर्फीम है। गुड क्लेवर क्या है, फ्री मॉर्फीम है ना। ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव इन्फ्लेक्शनल कहलाता है, और EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव इन्फ्लेक्शनल कहलाता है। तो कुछ क्लियर हुआ बेटा? जी सर। थोड़ा ओके, इन्फ्लेक्शनल कितने होते हैं बेटा, कितने इन्फ्लेक्शनल होते हैं? 8 सर। अबे बेटा इधर भी तो देखिए, 4 इधर भी हैं। बेटा सिद्रा 8 है सर। 8 इन्फ्लेक्शनल होते हैं। नाउन के कितने इन्फ्लेक्शनल होते हैं? 2 सर। 2 इन्फ्लेक्शनल होते हैं। एक इन्फ्लेक्शनल प्लूरल बनाते हैं नाउन के, एक पॉजिटिव। और एक पॉजेसिव बनाते हैं। possessive। प्लूरल कौन से बनाते हैं? एस वाले वर्ब, एस वाले इन्फ्लेक्शनल, एस वाले बाउंड मॉर्फीम प्लूरल बनाते हैं। और पॉजेसिव कौन से बनाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस। apostrophe s वाले सर। ओके, वर्ब के कितने इन्फ्लेक्शनल होते हैं? 4 सर। और अच्छा जी, एक कौन सा होता है जो सिंगुलर वर्ब Past tense। प्लूरल को सिंगुलर बना देता है? Plural को single अली प्लेज एंड दे प्ले। यस सर। ओके, दे प्लूरल है और अली सिंगुलर है। दे प्ले और उसके साथ एस लगा दिया तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर बन गया, अली प्लेज। ओके ठीक है ना, क्लियर? एक होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाता है, और sir। दूसरा क्या बनाता है? पास्ट टेंस बनाता है, जैसे ed लगा देते हैं। ओके, कुक, कुकड, सेकंड फॉर्म जिसको कहते हैं पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। ओके, और उसके बाद जब हमारी थर्ड फॉर्म थर्ड ing बनती है तो उसके साथ क्या कहलाता है? ing। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी हमारी जो थर्ड फॉर्म बनती है वर्ब की, तो वर्ब की जो चारों फॉर्म्स है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, प्ले, प्लेस। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ing। तो ये जो वर्ब की फॉर्म्स बनती है ना वो मॉर्फीम से ही बनती हैं, और वो मॉर्फीम्स क्या कहलाती हैं? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहलाती हैं। और उसके बाद आते हैं एडजेक्टिव्स। कितने होते हैं बेटा मॉर्फीम इन्फ्लेक्शनल? एडजेक्टिव में एडजेक्टिव में 2 वर्ड्स चेंज करते हैं, एक कंपैरेटिव और दूसरा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव। जी, फास्ट के साथ ER लगा दो, फास्ट के साथ ER लगा दो। कुछ क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा सर। तो, इसको आज मैं ये स्लाइड आपको शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड को थॉरोली स्टडी कीजिएगा। एक आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ बेटा, किस पे शेयर करूँ मैं? आपको ग्रुप में ही डाल देता हूँ, शेयर करता हूँ आपके। एक एक्सरसाइज गूगल से ही निकाली हुई है, वरना आप भी गूगल करके एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लीजिएगा, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। ये आपके पास एक स्लाइड है, इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले स्लाइड पढ़ लीजिएगा, मॉर्फोलॉजी की तमाम स्लाइड्स, और उसके साथ बाय द वे ये रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर। रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो पूछ सकते हैं। क्या थक गए? सर क्या आप ये सारी स्लाइड्स ग्रुप में भेजेंगे जो अभी आपने पढ़ाई ये है? अभी मैं अब आपको लिंक भी 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, आज की रिकॉर्डिंग्स भी आपको 1 घंटे में पहुंच जाएंगी, प्लस में ये स्लाइड में तो अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना? और थैंक यू सर अटेंडेंस अटेंडेंस बेटा 2 मिनट बचे हैं, शायद आपको एक दफा फिर आपको वो होना पड़ेगा, लॉग इन होना पड़ेगा 5 मिनट्स। ओके, फॉर अटेंडेंस इन 2 मिनट्स, इन 1 मिनट। सर आप सीआर से कहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले सारे, सर आप मिल जाएंगे एक्सीलेंट इस बेटा, तरह भी। एक्सीलेंट। आप सीआर बेटा, जुनैद, आर यू देयर? Yes, sir, I'm here. Okay, but please will you do this for me? Can you do me this favor? Yes, सर of course, मुझे एक sir, बात why not? कहनी है सर, Okay, इसीलिए बेटा। मैंने अटेंडेंस का नाम लिया कि पहले मैंने क्लास अटेंड किया था लेकिन लास्ट में डिस्कनेक्ट ओके हो बेटा, गया जुनैद था। से कह दें आप, जो जुनैद की अपना सजेशन होगी वो मेरे लिए फाइनल होगी, ठीक है? ओके सर। I'll